How are you? I hope you all are well at home. So let's start today's topic. Today our topic is again about force and machines. Students, in previous video we discussed about force, effects of force and different types of forces. Students, in this video today we will discuss about advantages of friction, disadvantages of friction and energy. Students, what is friction or friction force? The force that acts between two objects when they are in contact with each other is called friction or frictional force. जब कोई दो चीजें आपस में कांटेक्ट में होती हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या है? फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? हाउ इट इज यूजफुल फॉर अस. ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है? The friction between our feet and the ground makes possible for us to walk. ग्राउंड और हमारे फीट के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है उसकी वजह से क्या करते हैं? हम चल पाते हैं. वंस अगेन, द फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड मेक्स पॉसिबल फॉर अस टू वॉक. जो हमारे लिए चलने में क्या करता है? पॉसिबल कर देता है. ग्राउंड के ऊपर चलना हमारे लिए पॉसिबल हो पाता है ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ड्यू टू force of friction. We cannot walk easily on ice, on wet floor, on very smooth surface because there is less friction, because this surface produce very less friction, so we can't move easily on this type of surface. We can move easily on rough surface because it produces more force of friction. So we are able to move on rough surface easily but not on smooth surface due to less force of friction. Then next, the friction between the road and tires of vehicles makes them move on the road. व्हीकल्स के टायर के बीच में और रोड के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से क्या होते हैं? व्हीकल्स रोड के ऊपर मूव कर पाते हैं. ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हीकल्स कैन मूव ऑन रोड. देन नेक्स्ट इज फ्रिक्शन बिटवीन द पेपर एंड पेन हेल्प अस टू राइट ऑन द पेपर. पेपर और पेन के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही क्या करता है? इसकी वजह से हम क्या करते हैं? उस पेपर पे लिख पाते हैं. फ्रिक्शन बिटवीन द पेपर एंड पेन हेल्प अस टू राइट ऑन द पेपर. फ्रिक्शन हेल्प अस टू होल्ड पेन और पेंसिल इन आवर हैंड. फ्रिक्शन हेल्प अस टू होल्ड पेन और पेंसिल इन आवर हैंड. फ्रिक्शन और फोर्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में पेन और पेंसिल को हम होल्ड कर पाते हैं. इफ वी आर गोइंग टू होल्ड एनीथिंग we are able to hold them due to force of friction. If there is very less of force of friction in between the things, in between the hand or thing that we are going to hold it slips from our hand. वो क्या कर जाती है? हमारे हैंड से स्लिप कर जाती है due to less force of friction due to smooth surface of that object. And you know, smooth surface produce less force of friction. स्मूथ सरफेस क्या करती है? बहुत ही कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करती है? प्रोड्यूस करती है. इस वजह से वो हमारे हैंड से क्या हो जाती है? फिसल जाती है, स्लिप हो जाती है. We could not hold a pen or pencil in our hands without friction. यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम इन पेन और पेंसिल और किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारे हैंड में क्या नहीं कर पाएंगे? होल्ड नहीं कर पाएंगे.
एन इरेजर यूजेस फ्रिक्शन टू रब ऑफ पेंसिल मार्क्स, और इरेजर हम पेंसिल मार्क्स को रब करने के लिए इरेजर यूज लेते हैं। वो पेंसिल मार्क्स कब रब होते हैं? इट हैपन्स ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जब उन सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही वो मार्क्स इरेजर की हेल्प से हम उसको रिमूव कर सकते हैं, उनको रब कर सकते हैं। तो एन इरेजर यूजेस फ्रिक्शन टू रब ऑफ पेंसिल मार्क्स। इट मीन्स these are the advantages of force of friction. Once again I am going to repeat these advantages of force of friction. Due to force of friction we can walk easily on the ground. Due to force of friction vehicles can move on the road. Due to force of friction we can hold any object in our hand. Due to force of friction we can write on the paper. Due to force of friction we can erase pencil marks on the paper. Then disadvantages of friction. अभी हमने एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा. इट मीन्स हाउ force of friction is useful for us, but there is disadvantages also. So we are going to discuss now about disadvantages of friction. Friction can wear out soles of shoes, tires of vehicles, pencil, eraser, machines parts. जब भी आप कभी देखते हैं कि न्यू शूज पहनते हैं तो कुछ टाइम के बाद में उनका सोल क्या होता है? वियर आउट हो जाता है, फट जाता है, डैमेज हो जाता है. व्हीकल्स के टायर कुछ दिनों के बाद में डैमेज हो जाते हैं, फट जाते हैं, घिस जाते हैं. और पेंसिल और इरेजर जो आप काम में लेते हैं, पेंसिल और इरेजर, वो कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है. ऐसे ही मशीन्स के पार्ट्स हैं, कुछ दिनों के बाद में डैमेज हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं. ऑल दीज हैपन्स ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ये सारे डैमेज होते हैं. टू अवॉइड मशीन्स पार्ट्स फ्रॉम गेटिंग डैमेज ड्यू टू फ्रिक्शन. तो मशीन्स के पार्ट्स को डैमेज होने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उन पार्ट्स के बीच में हम क्या कर सकते हैं? We can use lubricant. We can lubricate it to them. We can use oil in between them. उसके लिए हम उसके बीच में ऑयल डाल सकते हैं, lubricated कर सकते हैं, उसमें lubricant डाल सकते हैं. Lubricants reduce friction. Lubricant क्या करता है? जब वो टू पार्ट्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उनके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है. इस तरीके से हम उस डैमेज को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं. लेकिन आपका जो इरेजर, पेंसिल, ये तो फिनिश होंगे. वी कांट डू फॉर दैट एनीथिंग. उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं. देन अगेन फ्रिक्शन कैन वियर आउट सोल्स ऑफ शूज, टायर्स ऑफ व्हीकल्स, पेंसिल, इरेजर, मशीन पार्ट्स. These happens due to force of friction. These damage happen due to force of friction. This is disadvantage. Then next, friction makes it difficult to slide heavy loads across the floor. यदि हम किसी heavy load को किसी फ्लोर पे स्लाइड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे लिए वो डिफिकल्टी कर देता है, हमारे लिए वो डिफिकल्ट कर देता है. Why? Due to force of friction we have to apply more force for that. उसके लिए हमें more force apply करना पड़ता है. Rubbing of two surface together generates heat due to friction. जब हम किसी टू ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है, हीट जनरेट होती है ड्यू टू फ्रिक्शन. किसकी वजह से? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से. Rub your palms together to feel the heat generated due to friction. इसके लिए आप अपने palms को भी rub करके क्या कर सकते हो? feel कर सकते हो कि after some time you will feel heat inside your palm.
generated heat. You can feel that. Heat produced due to friction can cause damage to machines. ऐसे ये heat जब machines के two parts में produce होती है वो उन parts को क्या कर सकती है, damage कर सकती है. This way it is not good for us. Then next, energy. What is energy? Energy क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. एनर्जी क्या है? एक एबिलिटी है काम करने की. वंस अगेन, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. किसी भी काम को करने के लिए क्या हमें एनर्जी चाहिए, और उस काम को करने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी. फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर. There are many forms of energy. There are many forms of energy. We have to read about some of them according to your syllabus. हम उनमें से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके बारे में, कुछ के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, रीड करेंगे. Which are these? Heat energy, light energy, electrical energy, mechanical energy and sound energy. These are the different forms of energy. ये एनर्जी के क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स हैं. Then first of all, heat energy. Heat energy is a form of energy. Apart from sun, we get heat energy by burning of fuels like coal, kerosene, LPG and wood. Heat energy mainly we get from sun. But apart from sun, we get heat energy from burning of coal, coal को जला करके, burning of kerosene, kerosene को जला करके, LPG गैस and wood और लकड़ी को जला करके भी हम क्या कर सकते हैं? हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. We can get heat energy by these options also. Then next, light energy. Next is light energy. Light energy help us to see things. Light energy क्या करती है? हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है. We can see things due to light energy. लाइट एनर्जी की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं. सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट एंड कैंडल्स आर सम सोर्सेज ऑफ लाइट. सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट एंड कैंडल्स, दीज आर द सम सोर्सेज ऑफ लाइट. इससे हम क्या कर सकते हैं? लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हम जिस भी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं हम देख सकते हैं. Then next is electrical energy. Electrical energy. Applications like fan, computer, washing machines, televisions, etc. All these electric appliances run by electrical energy. ये सब किसकी वजह से चल पाते हैं? electrical energy की वजह से चल पाते हैं. All these appliances uses electrical energy to run. ये रन का होने के लिए, चलने के लिए कौन सी एनर्जी यूज लेते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड एट पावर स्टेशंस. और ये इलेक्ट्रिसिटी है जिससे कि ये रन करते हैं, वो कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है? इन पावर स्टेशंस एंड सप्लाई टू आवर होम्स थ्रू वायर्स. और फिर वो पावर स्टेशन से हमारे घरों में वायर्स के थ्रू क्या होती है? सप्लाई होती है. टू यूज टू रन these electrical appliances that use electrical energy to run. जो कि रन करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज में लेते हैं. Then next is mechanical energy. Next is mechanical energy. The energy
possessed by an object due to its position or its movement is called mechanical energy. किसी the energy possessed by an object due to its position or its movement is called mechanical energy. किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से और उसमें मूवमेंट की वजह से जो क्या एनर्जी डेवलप होती है उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी. इट इज ऑफ टू टाइप्स. ये कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की होती है. पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. Potential energy is due to the position of an object and kinetic energy is due to the movement of an object. किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी. और जो उसके मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी. फॉर एग्जांपल, water stored in a dam has potential energy. water जो डैम में स्टोर्ड होता है has, तो उस स्टोर्ड वाटर में जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी. it has potential energy and when it falls from a height it has काइनेटिक एनर्जी. और जब इसको हाइट से नीचे गिराया जाता है उस टाइम जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी. देन नेक्स्ट इज साउंड एनर्जी. नेक्स्ट इज साउंड एनर्जी. रेडियो, टेलीविजन, लाउड स्पीकर्स, हॉर्न्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर सोर्सेज ऑफ साउंड एनर्जी. आर सोर्सेज ऑफ साउंड. Living things like humans, birds and animals also produce sound. ये भी सब क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.